قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دنیا پر راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ ایک دفعہ پھر اپنے عروج کی طرف گامزن ہے۔ طیب اردگان جیسے بڑے لیڈر نے غیر مسلم طاقتوں کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ آج آیا صوفیہ کا افتتاح کیوں کیا گیا؟ اس مسجد، سابقہ چرچ اور موجودہ میوزیم کی اصل حیثیت کیا تھی؟ کیوں آج عالمی طاقتیں اس ایک آیا صوفیہ کے اعلان کے بعد آگ بگولا ہوئے بیٹھی ہیں؟ کیوں یہودیوں کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے؟ اس تاریخی جگہ کی کیا اہمیت ہے جس کے بارے میں ایسی احادیث تک موجود ہیں جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جسے قسطنطنیہ یعنی آج کی دنیا اسے استنبول کے نام سے جانتی ہے، جہاں آیا صوفیہ موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طیب اردگان نے آیا صوفیہ کے افتتاح کے اعلان کے بعد کیسے سلطنت عثمانیہ کی ایک دفعہ پھر بنیاد رکھ دی ہے، کیوں آج اسرائیل اردگان کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے، مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کے لیے عرب ممالک کو ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر ترکی اور اردگان کے خلاف بڑا گیم پلان تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ گیم پلان کیا ہے؟ آیا صوفیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کا اعلان اور پھر ویژن 2023، ان سب کے پیچھے طیب اردگان، پاکستان، چین کا بڑا گیم پلان کیا ہے؟ ویڈیو میں حیران کن انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اعلان کے بعد طیب اردگان کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ترک صدر کو غیر مسلم طاقتوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اس کے سخت نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اردگان نے اس سے قبل 2018 میں آیا صوفیہ کے اندر قرآن مجید کی خود تلاوت کر کے اس بات کا اعلان 2 سال قبل ہی کر دیا تھا کہ آیا صوفیہ کو بہت جلد مسجد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ قومی آواز کم ہی اپنی ویڈیو سے متعلق آپ سے کہتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں، لیکن کیونکہ یہ ایک اسلامی تاریخ اور آنے والے دور اور نسلوں کے لیے ایک تاریخی ویڈیو ہے جس کو جاننا ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وقت قریب ہے جب مسلم اور غیر مسلم طاقتیں بڑی جنگیں لڑنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس آیا صوفیہ کے افتتاحی اعلان سے چند روز قبل ہی ترک ایئر ڈیفنس بیس کو نشانہ بنا کر طیب اردگان کو پیغام دے دیا گیا کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو جس سلطنت عثمانیہ کا خواب تم دیکھ رہے ہو اس سے قبل ہی ہم یعنی عالمی طاقتیں ترکی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن طیب اردگان ایک دبنگ لیڈر ہے، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ اس نے اگلے ہی روز امریکی F-16 جیسے طیارے کو روسی ساختہ S-400 سے تباہ کر کے غیر مسلم طاقتوں کو پیغام دے دیا تھا کہ ترکی کے راستے میں جو کوئی بھی آئے گا اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، ترکی ایئر ڈیفنس کو تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں، متحدہ عرب امارات ہی تھا، جو اس وقت اسرائیل کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی اگر تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عرب ممالک بھی سلطنت عثمانیہ کے ہی ماتحت تھے، جس میں آج گلف ممالک سمیت سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اب طیب اردگان گیم پلان کے تحت سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں، جو 100 سالہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ عرب شہزادوں کو فکر ہے کہ کہیں دوبارہ عرب ممالک کے وجود کو خطرے میں نہ ڈال دیا جائے، انہوں نے غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ مضبوط کر لیا ہے۔ آج متحدہ عرب امارات اسرائیل جیسے ملک کو نہ صرف کھلا تسلیم کر رہا ہے بلکہ مختلف قسم کے معاہدے بھی
कर रहा है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि गैर मुस्लिम ताकतें नहीं चाहती कि मुसलमान ममालिक हम पर काबिज़ हों, इसलिए उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते रहें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी देने वाली तमाम आलमी ताकतों को पैगाम दे दिया है कि आया सूफिया का दोबारा से इबादत के लिए खुलना तुर्की का दाखिली मामला है। सदर एर्दोगान ने कहा कि आया सूफिया वो जगह है जहां फतह इस्तांबुल के बाद फतह सुल्तान मोहम्मद खान ने पहली नमाज जुम्मा अदा की और उसे फतह की अलामत के तौर पर मस्जिद में तब्दील किया, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ी फतह का निशान है। सदर एर्दोगान ने कहा कि 1934 में आया सूफिया की अजायब घर में तब्दीली के फैसले ने कौम को अफसरदा किया था। इस मकाम का अपनी असल शनाख्त की तरफ वापस पलटना इंतहाई ज़रूरी था। आया सूफिया और इस्तांबुल की तारीख अहादीस में क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज की दुनिया इस्तांबुल के नाम से जानती है, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई हवालों से हुआ है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयों की हक़ानियत का अमीन है। ये शहर आपकी पेश गोइयों के मुताबिक 1453 में फतह हुआ, लेकिन इस अजीम शहर के बारे में बाकी तमाम अहादीस इस बड़ी जंग मलहमातुल कुबरा से मुतल्लिक हैं, जिसमें ये शहर एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और सैयदना इमाम मेहदी के फतूहात में फतह होने वाला आखिरी शहर यही होगा। ये कुस्तुनतुनिया जो इस वक्त इस्तांबुल कहलाता है, इसकी एक इमारत आया सूफिया गुज़िश्ता 2000 साल से तारीख के लातदाद मनाजिर देख चुकी है। आया सूफिया 481 साल तक मुसलमानों के सजदों से आबाद रही, लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। अब दोबारा इसके मीनारों से अजान की सदा बुलंद होने वाली है। कुस्तुनतुनिया का शहर और ये इमारत आया सूफिया मुसलमानों के अरूजो ज़वाल की कहानी सुनाती है। ये शहर एशिया और यूरोप के संगम और आबनाए बॉस्फोरस के किनारे पर आबाद किया गया है। तुर्क सदर का आया सूफिया को दोबारा खोलना दरअसल 100 साला मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने और तुर्की की आज़ादी की नवीद सुनाना था कि अब तुर्की आज़ाद है। जो 100 साला पाबंदियाँ तुर्की पर लगाई गई थी, अब तुर्की 2023 में इन तमाम पाबंदियों से आज़ाद होने जा रहा है। और यहाँ आप मेरी बात कान खोल कर सुन भी लें और समझ भी लें। आया सूफिया का एक दफ़ा फिर इफ्तिताह सल्तनत उस्मानिया के नए दौर का आगाज़ है, जिसके बाद तुर्की जो यूरोप और एशिया के दरमियान में ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पूरी दुनिया के तिजारती जहाज़ समंदरी रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अगर 2023 तक तुर्क सदर ऐसे ही दबंग फैसले करते रहे तो समझ लें, यूरोपीय ममालिक हों या एशियाई ममालिक, ये सब के सब तुर्की के सहारे पर आ जाएंगे। मतलब तुर्की का शहर इस्तांबुल, जिसके बारे में अहादीस में पेश गोइयाँ तक कर दी गई हैं कि इस शहर को फतह भी इमाम मेहदी करेंगे, मतलब साफ है इस्तांबुल पर आने वाले वक्त में गैर मुस्लिम ताकतें कब्जे के लिए जंगें लड़ेंगी। दुनिया के तिजारती माल बरदार समेत बड़े बड़े दिफाई बहरी बेड़े भी एक से दूसरे मुल्क में जाने के लिए तुर्की के आबनाए बॉस्फोरस का समंदरी रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद 100 साला मुआहदे के तहत आज तुर्की इन जहाज़ों से अपनी समंदरी हदूद इस्तेमाल करने का टैक्स वसूल नहीं कर सकता। लेकिन जब ये 100 साला मुआहदा 2023 में ख़त्म होगा तो फिर जितना पैसा तुर्की को इस बहरी रास्ते का मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। यही वजह है आज दुनिया और गैर मुस्लिम ताकतें तुर्की को ढेर करना चाहती हैं, जिसके लिए अभी से मगरबी ताकतों ने साजिशें करना शुरू कर दी हैं। अरब ममालिक को डर है कि कहीं तुर्की सल्तनत उस्मानिया के 100 साला मुआहदा ख़त्म होने के बाद अरब ममालिक पर चढ़ाई ना कर दे। इसलिए आज अरब ममालिक भी गैर मुस्लिम
मगरबी ताकतों के साए तले बैठ गए हैं ताकि तुर्की को शिकस्त दी जा सके। आज इसराइल खुलकर तैयब उर्दुगान के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडे चलवा रहा है कि ये तो एक डिक्टेटर टाइप का शख्स है। कभी लीबिया और कभी शाम जैसे मुल्क से तुर्की पर हमले करवाए जा रहे हैं। अमेरिका और रूस समेत इजराइल के खुफिया इदारे सर जोड़कर बैठे हैं कि कैसे खिलाफत उस्मानिया को कायम होने से रोकना है। विजन 2023 असल टारगेट तैयब उर्दुगान का भी है और गैर मुस्लिम ताकतों का भी। वो 2023 से कबल तैयब उर्दुगान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए कभी वो तुर्की के सहाफ़ियों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं और कभी तुर्की की दिफाई ताकत को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखें, इस तमाम बड़ी गेम में पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम है। तैयब उर्दुगान का दौरा पाकिस्तान विजन 2023 में पाकिस्तान को बड़ा हिस्सा देने की खुशखबरी सुना चुके हैं। अंदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की दोनों में एक खुफिया दिफाई डील हो चुकी है, जिसके तहत अगर तुर्की पर जंग मुसल्लत की गई तो पाक फौज मदद करेगी और अगर पाकिस्तान पर किसी भी मुल्क ने जंग मुसल्लत की तो तुर्की सीना तान कर खड़ा होगा। वक्त करीब है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिम ताकतों के दरमियान बड़ी जंगों का आगाज़ हो। इसलिए मुसलमान ममालिक को होश के नाखून लेते हुए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा। अरब ममालिक को चाहिए कि वो अपनी बादशाहत से ज़्यादा दीन इस्लाम की फ़िक्र करें। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुसलमान ममालिक की तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। आया सूफिया में 95 साल बाद बुलंद होने वाली अजान एक ऐसे शहर से अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलेसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।